Jai Hind students. So today we will just cover second complex topic, that is design of experiment. And I am taking this module additive manufacturing. The subject code is KME 071. Myself, Dr. Tarun Bhardwaj, assistant professor in the Department of Mechanical Engineering. So let us start with this design of experiment. So first of all, we will see the outline. So what we will cover in this particular topic, that is the introduction part. Then after that, we will cover the method of experimentation, experimental design, principle of experimental design, and the response surface methodology. So we will just discuss these things over here in this design of experiment. Okay. So first of all, when we just talk about the introduction of this topic, so what is actually the design of experiment is, it is basically the statistical technique that is introduced by the Sir R.A. Fisher in England in the early 1920s. Okay, and his primary goal was to determine the optimum water, rain, sunshine, fertilizer and the soil condition needed to produce the best crop. So you can just get the idea why we are just talking about this subject, design of experiment. Basically, we are having when we just talk about the experiments, so we are having some you can say the output on which we are working. Okay, so जब भी हमारे पास कोई आउटपुट है उसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो हैविंग द इनपुट, एंड दैट इनपुट कैन बी ऑफ मीन्स दैट इनपुट कैन बी you can say a 1, 2 or more than even 10 or 15. Okay, that will depend हाउ योर एक्सपेरिमेंटेशन इज, आपका एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट है या आपका जो आउटपुट है वो कितने हो सकते हैं. सो व्हेन वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, सो यू जस्ट सी दैट दीज इनपुट्स आर correlated with each other. Okay, so there are number of the sets of the, you can say, the settings that we have over there in that particular experiment. If we are having the large number of the inputs, अगर हमारे पास बहुत सारे inputs हैं, तो you will see that you are getting a number of the means you are getting a very large number of the setting of the process parameter. So it is quite difficult to do the experimentation over there. Okay, अगर suppose करिए मैं बात करूं, if we are having a 5 number of the input process parameter and we are just taking the 5 number of the levels, means अगर हम suppose हम लोगों को लेजर पावर की मैं बात करूं, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दी इन टर्म्स ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, हम लेजर पावर ले रहे हैं और लेजर पावर के हमने 5 लेवल्स ले लिए हैं. मतलब अगर हम लोग 300 वाट पे काम करने चाह रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि 100 वाट पे क्या होगा, 200 वाट पे क्या होगा, 400 वाट पे क्या होगा और 500 वाट पे क्या होगा. ओके, सो वी आर हैविंग द 5 लेवल्स ऑफ द लेजर पावर ओनली, एंड सच एज द लेजर पावर वी आर हैविंग अदर प्रोसेस पैरामीटर्स ऑल्सो. हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, जैसे कि स्कैन स्पीड है, फीड रेट है, उसके हैच का डिस्टेंस है. so we are having a lot of process parameter like this. Okay, so we have if suppose we are having the 5 process parameter and the 5 levels, so we are getting a very large number of the data sets over there. So how can we just reduce that? We can just reduce that by using this DOE, design of experiment technique over here. As you can see that the R.A. Fisher, Sir R.A. Fisher, he used to apply this DOE for producing the best crop. Okay, and what are the condition? The condition is the water, rain, sunshine, fertilizer and so. So using this DOE technique, Fisher was able to lay out all possible combinations created using the matrix. Okay. Now DOE is basically the method of experimenting with the complex process with the objective is basically to optimize that particular process. Okay, and DOE basically refers to the process of planning, designing and analyzing the experimentation. Means you have in that particular DOE you have to plan also, means what kind of the process parameter you are selecting, and you also have to design your the whole process, that how basically for you can say कि आपका basically output यहाँ पे क्या होगा, आप क्या analyze करना चाहते हैं. तो you have to see all the things over here. And this statistical design of experiment refers to the process of planning the experimentation so that the appropriate data that can be analyzed by statistical method will be collected and result in a valid and the objective conclusions. Okay, now when we just talk about this method of experimentation, so DOE is the method of experimenting with the complex process with the objective of optimizing the process. Okay, now there are few method of experimentation over here. The first one is the trial error. जो सबसे पहला है वो है आपका ट्रायल एरर. मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर हैं एंड आपको किसी चीज को बेसिकली आपको बेस्ट चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारे ट्रायल्स मारते हैं उसके ऊपर
कि क्या पता इसको बढ़ाने से कुछ हो जाए, इसको कम करने से कुछ हो जाए। ओके, जैसे हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर हम लोग एफडीएम बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें बेसिकली आप लोग देखेंगे दैट अगर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर, बेड का टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो यू आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज ओवर देयर। ओके, सो दिस यू कैन से कि अगर आप वहाँ पे हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं, ओके मतलब आपने बढ़ाया तो यू आर गेटिंग सम गुड थिंग्स, इफ यू आर अब अगर उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग सम बैड थिंग्स ओवर देयर। तो दिस इज इन दैट इज बेसिकली इन द you can say the first step, trial and error over there. So you are having you are just doing some trials and you are getting some errors over there. The second one is the single factor experiment, means you are just changing one factor to be changed at a time. Okay, so in this particular process होता क्या है कि we are having a lot of process parameter over here. आप एक बार में केवल एक ही पैरामीटर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं लेजर पावर की या फिर स्कैन स्पीड, पाउडर फीड रेट की, इन दी आपके जो डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसमें अगर आप केवल लेजर पावर पे फोकस कर रहे हैं या फिर आप केवल पाउडर फीड पे फोकस कर रहे हैं, ओके आप केवल एक स्कैन स्पीड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट। मींस यू आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन अ सिंगल फैक्टर एट अ टाइम। ओके, एक बार में केवल आप एक ही फैक्टर पे फोकस कर रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज एज यू सी दैट अगर हम लोग आउटपुट की बात करें, किसी भी एंड यूज प्रोडक्ट की बात करें जो भी हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है, तो यू विल सी के वहां पे जो भी आपका प्रोडक्ट है दैट विल डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल पैरामीटर्स। आपके जितने भी पैरामीटर हैं उनके कॉम्बिनेशंस पे वो बेसिकली डिपेंड करता है, वो कभी भी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, नाउ द थर्ड इज द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज समथिंग लाइक दैट, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो द फ्रैक्शनल फैक्टर एक्सपेरिमेंट, मतलब हम लोग फ्रैक्शनल वे में उसको बेसिकली ले रहे हैं। मतलब आपके पास जितनी भी कंप्लीट सेटिंग आई है, अगर सपोज करिए 3 आपने फैक्टर लिए हैं और उनके 3 ही लेवल हैं, तो वहां पे आपके यू कैन जस्ट सी कि आपके पास 27 नंबर ऑफ द सेटिंग्स पैरामीटर की होंगी। बट आप 27 नहीं लेना चाहते हैं, वहां पर उसको कम करना चाहते हैं, तो यू जस्ट कैन डू द फ्रैक्शन ऑफ देम। ओके, आप वहां पे फ्रैक्शनल यूज कर लेते हैं, फ्रैक्शन फैक्टोरियल मींस दैट चेंज मेनी टाइम्स एट टाइम विद द रिड्यूस नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा अबाउट दी दिस रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी में, जैसे कि हमारा सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन होता है, तो उसमें हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं इसको टू दी 20। ओके, अगर हम लोग बॉक्स वैगन डिजाइन की बात करें तो वहां पे हम लोग इसको रिड्यूस कर पाते हैं टू दी 15 नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में। ओके, सो दीज आर सम यू कैन से द फ्रैक्शनल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, जो कि मेजरली हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। देन द फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, मतलब आपके पास 27 नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट है एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर दीज होल 27 ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बट दिस इज नॉट पॉसिबल अगर आपके प्रोसेस पैरामीटर 5 है और उसके लेवल भी 5 है, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू यू कि आपके लार्ज नंबर ऑफ द सेटिंग्स यहां पे आपकी हो जाएंगी। यू आर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ सेटिंग पैरामीटर्स। ओके, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट समटाइम, है ना, जब आपके पास बहुत सारे पैरामीटर हैं, उसकी सेटिंग्स हैं, फिर उसके आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू यू। ओके, और कुछ इसके अलावा फिर हमारे पास कुछ डिजाइन है जो कि कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, जैसे टागुची है, रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी है, बॉक्स जैकिंस एटसेट्रा। सो दीज आर बेसिकली सम अदर टेक्निक्स जो कि डिफाइंड बेसिकली करी है काफी लोगों ने, और इसमें और भी बहुत सारे यू कैन से लोग हैं जो कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में वर्क करते हैं। ओके, नाउ ट्रायल एरर, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रायल एरर इज बेसिकली द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द लर्निंग, कि आपके पास यू आर जस्ट सम थिंकिंग, लेट्स ट्राई दिस, आपने एक्सपेरिमेंट करा, अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से मोर थिंकिंग करेंगे और ट्राई करने, फिर लेट्स ट्राई दिस, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर सम मोर थिंकिंग ऑन दैट। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है आपका। जैसे आप कोई चीज डाली आपने, ठीक है, इफ यू आर जस्ट मेकिंग सम कप ऑफ टी, अगर आपको लग रहा है कि आपको उसमें चीनी की जरूरत है तो आपने उसमें चीनी डाली, चाय पत्ती जरूरत है चाय पत्ती, दूध डाल दिया उसमें। तो दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको बेसिकली आउटपुट कैसा चाहिए। ओके, आप क्या किस चीज के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इन सम केसेस इट इज एज एफिशिएंट और एप्लीकेबल एज other detail, that is statistical strategy. Okay, so example is finding the combination of the log where previous trials provide the no insight into the subsequent trails. Okay, so this is about the trial and error method.
एंड द ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट हैव द लैक डायरेक्शन द फोकस, बिकॉज यहाँ पे मालूम ही नहीं हम लोग की क्या डायरेक्शन और क्या बेसिकली फोकस है। तो गैस वर्क है पूरा पूरा यहाँ पे, आपकी पूरा जो भी आपके आप जो सोच पा रहे हो उसी को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। द सेकंड इज बेसिकली द ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट इज हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन एग्जिस्ट ओवर देयर एंड व्हाट वुड हैपन इफ वी एडेड मोर वेरिएबल्स ओवर देयर। अगर हम लोग और वेरिएबल्स वहां पे ऐड कर देते हैं तो बेसिकली आप देखोगे कि आपका जो ट्रायल एंड एरर है वो बहुत बड़ा चला जाएगा। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपके पास सपोज 10 प्रोसेस पैरामीटर हैं, ओके, और 10 प्रोसेस पैरामीटर को आप एक बार इंक्रीज करके डिक्रीज करके अब उनके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप बनाने लगे तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू। ओके, नाउ सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट अलाउज द मैनिपुलेशन ऑफ ओनली वन फैक्टर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। सिंगल फैक्टर भी आप कर सकते हैं कि आपने क्या किया कि एक बार आपने जो 10 फैक्टर हैं आपके पास, आप उनमें से एक एक करके एक एक बार उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए अगर हम लोग अगर हम लोग बात करें कि हमें अपने एंड जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें सरफेस रफनेस जो है वो बहुत हमें अच्छी चाहिए, ओके, सरफेस फिनिश जो हमें बहुत अच्छी चाहिए। तो सरफेस फिनिश हमारा क्या है बेसिकली आउटपुट हो गया एक, ठीक है। अब इसके इनपुट क्या है, अगर हम लोग एडिटिव की टर्म्स में बात करें तो सरफेस फिनिश इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द लेजर पावर, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्कैन स्पीड, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द पाउडर फीड रेट, it is also depend upon the scanning strategy, it is also depending upon your build orientation, okay। और इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें प्रोसेस हैं आपके जो आपके बेसिकली सरफेस फिनिश को बेसिकली रेगुलेट करते हैं अगर हम लोग आउटपुट की बात करें, ओके। अगर अगर आप देखोगे कि क्या केवल लेजर पावर का इफेक्ट देख रहे हो सरफेस रफनेस पे, स्कैन स्पीड का सरफेस रफनेस पे, पाउडर फीड का स्कैन, केवल एक सिंगल फैक्टर को एक टाइम पे अगर आप लेके चल रहे हो तो यू विल जस्ट सी कि आपको जो सरफेस फिनिश मिलेगी लास्ट में, अगर आप इनके एक एक प्रोसेस पैरामीटर को लेके चलोगे तो वो यू विल नॉट गेट द एक्चुअल फाइनल यू कैन से द ऑप्टिमम काइंड ऑफ द थिंग ओवर देयर। आपको ऑप्टिमम कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो तो आप बेसिकली यहाँ कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो वन फैक्टर एंड द वेरिएट व्हाइल होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी सबको आपने कांस्टेंट रख दिया है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको यहाँ पे कुछ ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाए। सो assumption इन द सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट इज टू आइसोलेट द चेंजेस इन द रेस्पॉन्सेज वेरिएबल एज दे रिलेट टू अ सिंगल फैक्टर। केवल आपका लेजर पावर पे अगर आप कर रहे हो तो लेजर पावर पे ही डिपेंड करेगा, ओके। सो दीज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर सिंपल टू एनालाइज, इनको एनालाइज करना बहुत ईजी है। ओनली वन थिंग चेंज एट अ टाइम एंड यू कैन सी व्हाट effect that change has on the system, and this is also time consuming because changing only one thing at a time can result in dozen of repeated experiment and interaction effect between the variables cannot be analyzed। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटरेक्शन है आपके वेरिएबल्स का वो आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो, ओके। नाउ अगर हम लोग फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की बात करें, सो ओनली वन थिंग चेंजेस एट अ टाइम एंड यू कैन सी व्हाट अफेक्ट्स चेंज has on the system, okay। time consuming process है ये भी। changing only one thing at a time can result in dozens of repeated experiment interaction between the variables cannot be analyzed over here, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करते हैं अबाउट दी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, अगर हम लोग बात करें, सॉरी दैट इज फॉर द सिंगल यू कैन से वन फैक्टर एट अ टाइम। अगर हम लोग फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फैक्टोरियल डिजाइन वुड अनेबल एन एक्सपेरिमेंटर टू स्टडी द जॉइंट इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स और प्रोसेस डिजाइन पैरामीटर ऑन अ रेस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटर है वो स्टडी कर सकता है द जॉइंट इफेक्ट मीन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर्स। जो आपके फैक्टर्स हैं या फिर आपके जो भी प्रोसेस पैरामीटर है उनका कंबाइंड इफेक्ट किस चीज के ऊपर, रेस्पॉन्स के ऊपर बेसिकली क्या पड़ रहा है, वो उसको बेसिकली यहाँ पे एनालाइज कर सकता है, ओके। एंड अ फैक्टोरियल डिजाइन कैन बी आइदर फुल और द फ्रैक्शनल फैक्टोरियल। वो फुल भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताया कि वो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं बाई यूजिंग सम टेक्निक्स ऑल्सो, और आइदर यू कैन जस्ट गो फॉर द फुल ऑल्सो, ओके। फुल हम लोग जाते हैं जब वी आर हैविंग अ वेरी लेस नंबर ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर और वी आर हैविंग अ वेरी लेस नंबर ऑफ द लेवल ओवर देयर। जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ द फैक्टर उनके ज्यादा लेवल हम लोग जब काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जाते हैं ऑन दी फ्रैक्शनल फैक्टोरियल, ओके। सो स्टडीज ओनली फ्रैक्शन और सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो जो हमें लगता है कि यस दे आर दी बेसिकली यू कैन से कि ये बेसिकली हमारे बाउंड्री के बेसिकली जो प्रोसेस पैरामीटर हैं, बिकॉज हम लोग अगर बात करें वी आर हैविंग, अगर हमारे पास बहुत सारे लेवल हैं, 3 लेवल है, 5 लेवल है, तो जो उनकी जो बेसिकली बाउंड्री जो बन रही है, लास्ट के जो बेसिकली प्रोसेस पैरामीटर है और सेंट्रल के जो प्रोसेस पैरामीटर है उनको लेके हम लोग यहाँ पे ज्यादा वर्क करते हैं, और बीच के जो बेसिकली प्रोसेस पैरामीटर सेटिंग है उनको हम लोग छोड़ देते हैं, ओके। सो दैट वी कैन जस्ट गेट द आउटपुट। हमारे हमने पूरी बाउंड्री भी कवर कर लिया है, सेंटर भी कवर कर लिया है, और अगर हम लोग लगता है कि 1-2 बीच के पकड़ लेने चाहिए तो उन प्रोसेस पैरामीटर को भी हम लोग यहाँ पे
पकड़ के वर्क करते हैं. A selected and the controlled multiple number of the factors are adjusted simultaneously over here. Okay, so factorial design would enable an experimenter to study the joint effect of the factor. A factorial design can either be full or fractional factorial. Studies only a fractional subset of all possible combination. Okay, a selected and controlled multiple number of factors are adjusted simultaneously over here. So this reduces the total number of experiments. This reveals the complex interaction between the factors. This will reveal which factor are more important than the other. तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि आप यहाँ तक तो इंटरेक्शन कर पाते हैं. ओके, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि कौन सा फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर वन, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल जाता है, क्योंकि व्हेन यू आर जस्ट गोइंग फॉर द आउटपुट, तो बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग द कॉम्बिनेशन, लेजर पावर का आपने स्कैन स्पीड के साथ कॉम्बिनेशन किया, लेजर पावर का आपने पाउडर फीड रेट के साथ कॉम्बिनेशन किया, स्कैन स्पीड का पाउडर फीड रेट के साथ कॉम्बिनेशन किया. ओके, तो आप लोग देखोगे कि जब आप इंटरेक्शन पे जा रहे हो तो किसके साथ किसका इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो वहां से हम लोगों को एक आइडिया पड़ जाता है कि दैट फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस. ओके, तो हम लोगों को इस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है. ओके, सो फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टेड लेवल ऑफ द फैक्टर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, एंड अ फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल ऑफ फैक्टर इन द एक्सपेरिमेंट. So thus we are having the k factor each at 2 level. The full factorial consists of, so this is basically you can see 2 to the power k, मतलब उसके अगर 2 लेवल है और k फैक्टर है तो ये इतने नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपके पूरे बनेंगे वहां पे 2 to the power k. ओके, so this is basically showing you you can say कि आपको ये बेसिकली एक इक्वेशन मिल गई यहाँ से कि आपके सपोज करिए 3 लेवल होते हैं, आपके 3 फैक्टर है, तो यू आर हैविंग द 3 to the power 3. ओके, सो k is basically showing you the factor over here. Now, benefit of full factorial design is this basically that reveal whether the effect of each factor depend on the levels of other factors in the experiment and showing the interaction effect. Okay, and FFE provide the excellent precision for the regression model parameter that estimates that summarize the combined effect of the factor. It is also the time consuming. We know that it is a time consuming process because अगर आप 3 to the power 3 पे भी बात करें तो यहाँ पे आपको 27 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. अगर आप पार्शियल की बात करें तो आपको 20 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. तो दिस 7 एक्सपेरिमेंट विल कंज्यूम योर टाइम. अगर यहाँ पे हम लोग 5 to the power 5 पे चले जाएं तो यहाँ पे और ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होने वाला है. ओके, सो जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ प्रोसेस पैरामीटर होंगे उतना ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम यहाँ पे होगा. ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की. सो इट इज एन efficient procedure for planning experiment so that the data obtained can be analyzed to yield the valid and you can say the objective conclusions over here. So when performing an experiment, varying the level of the factor simultaneously rather than one at a time is efficient in terms of time and the cost. Okay, and also allows for the study of interaction between the factor. मतलब अगर हमारे पास सपोज करिए 5 फैक्टर हैं और उसके 5 लेवल हैं, तो आपको 5 to the power, आपको यहाँ पे 25 नंबर ऑफ दी, आपको यहाँ 25 बार बेसिकली आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उसमें भी आपको क्या है कि रिजल्ट नहीं मिलते हैं. ओके, क्योंकि आप एक फैक्टर के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं. कि अगर हम लोग इन पांचों का कॉम्बिनेशन बना दें और हम लोग अगर पार्शियल इनका बेसिकली पार्शियल अगर हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन लगाएं यहाँ पे, तो यू विल सी कि यू आर गेटिंग द ऑप्टिमम रिजल्ट्स rather than this 25 results, this 25 number of experiment. Okay, so factorial design allows the simultaneous study of the effect of several factors that may have on a process. Okay, so this is basically you can say a schematic, you can say the diagram how basically the levels are. The level 1 is suppose the general problem. हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसे बनता है. बेसिकली हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है. ओके, इट मे हैव द सिंगल ऑब्जेक्टिव, इट मे हैव द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग अभी एडिटिव की बात करें तो यहाँ पे अब जैसे हम लोगों ने बात करी सरफेस फिनिश की, तो सरफेस फिनिश एक ऑब्जेक्टिव हो गया. उसके बहुत, अगर आप लोग बात करें उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आप उसके फटीग की बात कर रहे हैं उसके. ओके, सो दीज आर बेसिकली, अगर आप उसकी ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ द you can say you are having the number of the experiment, number of the objectives you are having over here. Okay, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में. और आप किसी एक के पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो दैट इज योर सिंगल ऑब्जेक्टिव.
ओके, नाउ द प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी अ कंस्ट्रेंट वन, इट कैन बी अ अनकंस्ट्रेंट वन। आपके यहाँ कुछ कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, ओके, कि आपको सपोज करिए सरफेस फिनिश की मैं बात करूं तो अगर आप कोई ऐसा कोई सैंपल बना रहे हैं जिसमें आपको केवल 2 ही माइक्रोन चाहिए, 3 ही माइक्रोन चाहिए, तो दिस इज योर कंस्ट्रेंट। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्टिमल वैल्यू पे नहीं जाना, ये दिस इज योर कांस्टेंट कि आपको 2 ही माइक्रोन चाहिए उसके लिए, तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ओवर देयर कि भैया मुझे तो 2 माइक्रोन ही चाहिए, ओके, या मुझे 3 ही माइक्रोन चाहिए, ओके। और देन फोर्थ वन इज बेसिकली द वेरिएबल क्लासिफिकेशन, इट कैन बी द कॉन्टिन्यूस, इट कैन बी द इंटीजर और डिस्क्रीट, इट कैन बी द मिक्स्ड टाइप ऑल्सो, ओके। देन after this level 5 is basically the function classification, it can be a linear or the non-linear, convex or the non-convex, differentiable on the non-differentiable type of the equation you are having, कि आप मतलब आपका जो बेसिकली जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे बेसिकली वेरी कर रहा है आपके इनपुट के साथ, ओके, वो लीनियरली वेरी कर रहा है या फिर इट इज हैविंग सम नॉन लीनियर रिलेशनशिप विद द इनपुट, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेवल 5 को डिफाइन करते हैं। Now, what are the principles of the experimental design is this. The 3 principles of experimental design used to improve the efficiency of the experiments are randomization, replication और blocking। मतलब आपने अपने एक्सपेरिमेंट है, अगर आप सपोज करिए आपने यहाँ पे आपके पास you are having suppose 5 नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो आप क्या कर रहे हैं, रेंडमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब आपने अपने प्रोसेस को रैंडमली आप बेसिकली कर रहे हैं, आपने 1 2 3 4 5 नहीं करके उसको रेंडमाइजेशन कर दिया, मतलब आप पहले 3 लेंगे, फिर आप 5 ले रहे हैं, फिर आप सपोज करिए 2 ले रहे हैं, देन 1 ले रहे हैं, देन 4 ले रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आप जो एक सेट बनाते हैं, मतलब एक बार जो प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें अगर आपकी लेजर पावर 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, तो आप 3 में अगर यहाँ पे सपोज करिए 600 है और यहाँ पे 700 है, तो यहाँ पे क्या कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रही है लेजर पावर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंटिन्यूसली किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पे आपको चेंजेस नजर ना आए, बट अगर आप किसी चीज को यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ 500 पहले करेंगे, देन आप 700 पे जाएंगे, तो यू विल सी के यहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं, ओके। 500 से 700 आए, फिर उसको 300 लिया, फिर उसको 100 लिया, तो यू विल सी कि रेंडमाइजेशन से हमेशा हमारी जो एफिशिएंसी है एक्सपेरिमेंट की वो हमेशा इंप्रूव होती है। देन सेकंड वन इज द रेप्लिकेशन, मतलब आपने जो ये एक्सपेरिमेंट किए हैं आप इनको रेप्लिकेट कर रहे हो, बार बार 3 बार कर लिए आपने, रेप्लिकेट कर लिया और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आपने जो भी आपका फाइनल आउटपुट है वो उसको आप एवरेज कर रहे हो और उनका साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहे हो कि इतना बेसिकली इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आया, तो यू कैन जस्ट चेक द प्रिसीजन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट ओवर हियर इन द रेप्लिकेशन, ओके। ब्लॉकिंग इज बेसिकली कि आपने एक पर्टिकुलर डे में या एक पर्टिकुलर घंटे में या एक पर्टिकुलर एक आदमी ने कितने नंबर ऑफ सेट्स उसमें किए हैं, है ना। जैसे सपोज करिए एक आदमी की शिफ्ट है वो 8 घंटे की है, तो वो इसका ब्लॉक है कि वो उस बंदे ने ये काम किया है, तो उसकी फिनिश इट में भी पॉसिबल के एक एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है बंदा और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है बंदा, उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस हो सकता है, दैट्स व्हाई वी जस्ट डू द ब्लॉकिंग कि ये इसका काम है और ये इसका काम है, ओके। So we just define the blocks over there, हम लोगों ने blocks basically वहां पे बना दिए हैं। So these principles of experimental design are applied to reduce or to remove the experimental bias, or larger experiment bias could result in a wrong optimal setting, okay। Now randomization is one of the method experimental often rely on to reduce the effect of experimental bias, ताकि experimental bias ना हो, and the purpose of randomization is to remove all sources of extraneous variation which are not controllable in the real life setting, okay, जो कि आपके रियल लाइफ सेटिंग में कंट्रोलेबल नहीं है, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस द मैन्युफैक्चर ऑफ अ मेटल पार्ट इज एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग pupil where the attitude of the pupil who operate on the machine vary from time to time, okay। तो वो वेरी करता ही है, आपको मालूम है, ठीक है। तो कोई बंदा किस टाइप से काम करता है, कोई बंदा किसी टाइप से काम करता है, तो रेंडमाइजेशन जब हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भी होल प्रोसेस, जो बेसिकली जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है वो एक उसका जो एवरेज निकले एटलीस्ट वो एक ऑप्टिमम एवरेज हमारे पास आए, ओके। रेप्लिकेशन यू नो कि हम लोग चीजों को बार बार रेप्लिकेट करते हैं, हम लोग जब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते भी हैं अपने इवन इन योर रिसर्च, तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट यू जस्ट डू एटलीस्ट 3 to 5 नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और क्योंकि जब आप उसका एवरेज निकालोगे और उनका जब स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे तो यू विल सी के आपने के जो बेसिकली रिजल्ट्स हैं वो कितने वेरी कर रहे हैं, ओके। एंड व्हेन यू जस्ट फाइंड कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो कम है, ओके, तो यू विल फाइंड कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें प्रिसिजन लेवल आपका बहुत अच्छा रहा है, ओके। तो यू कैन जस्ट सी बाय यूजिंग दिस रेप्लिकेशन, so in an all industrial design experiments some variation is introduced because of the fact that experimental units such as pupil, batches of material, machine, etc.
cannot be physically identical. Okay, so replication means the repetition of an entire experiment or portion of it under more than one condition. Okay, now अब लोग बात करते हैं replication. So second property is that it permits the experimenter to obtain more precise estimate of the factor or interaction effect. So third property is that replication can decrease the experimental error and thereby increase the precision over here. So replication can result in a substantial increase in the time needed to conduct an experiment. Moreover, if the material is expensive, replication may lead to exorbitant material cost. ठीक है, अगर आपका मटेरियल बहुत महंगा है तो आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग जब भी हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग नहीं सोचते अबाउट दिस, बिकॉज हम लोगों को एक ऑप्टिमम वैल्यू देनी होती है, बिकॉज उसी पे बेसिकली प्रोडक्शन चलना है आगे, वो उसी सेटिंग पे बेसिकली आपका प्रोडक्शन होना है. तो वी कैन जस्ट गो फॉर दिस रेप्लिकेशन ऑल्सो. ब्लॉकिंग इज अ मेथड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ extraneous variation due to the noise factors and thereby improving the efficiency of the experimental design. Okay, so the main objective is to eliminate the unwanted source of variability, ताकि आपके जो unwanted source है variability such as batch to batch, day to day, shift to shift, वो आपके basically यहाँ पे eliminate हो पाए. तो idea is to arrange the similar or the homogeneous you can say the experimental runs into the blocks or the groups. Okay, जैसे बताया कि 1 घंटे की शिफ्ट आपके 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे की शिफ्ट का एक ब्लॉक बना दिया, तो वैसे हम लोग यहाँ पे बेसिकली ब्लॉकिंग करते हैं. नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी RSM. तो ये एक बेसिकली डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की यू कैन से एक बेसिकली प्रोसेस है. ओके, तो रेस्पॉन्स सरफेस डिजाइन मेथोडोलॉजी बेसिकली कैसे अलग है बाकियों से, because over here in the response surface design is basically the set of advanced design of experiments DOE technique that helps you better understand and optimize your response. तो यहाँ पे आप DOE भी लगाते हो साथ साथ इसमें, और इसमें आप ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हो साथ साथ में. ओके, इन द रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी. तो रेस्पॉन्स सरफेस बेसिकली इसके नाम है कि आपका जो रेस्पॉन्स है आप उसको एक बेसिकली सरफेस की टर्म्स में भी देख सकते हो. ओके, एज यू कैन सी इन द a diagram that is given below over here, that it is often used to refine the models after you have determined the important factor using the screening design or the factorial design, especially if you suspect the curvature in the response surface. अगर हम लोग बात करें response surface की, okay, अगर आप 3D मॉडल की बात कर रहे हैं, you are having suppose this is your surface roughness, okay, and over here you are having the laser power. आपका यहाँ पे जो है वो laser power है. Okay, this is your laser power and over here you are having suppose scan speed. लेकिन अगर आप देखते हो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल लीनियर वेरिएशन मिल रहा है, रेस्पॉन्स सरफेस विद नो कर्वेचर, इसका मतलब है कि आपकी लेजर पावर आपकी कांस्टेंट है और आपका जो स्कैन स्पीड है वो बढ़ रहा है. तो यू विल सी कि आपकी जो रफनेस है उसका कोई भी कर्वेचर नहीं है, दैट इज द स्ट्रेट, यू कैन आपको एक स्ट्रेट वैल्यू मिल रही है बेसिकली यहाँ पे. ओके, आपको एक यहाँ स्ट्रेट वैल्यू मिल गई है कि आपकी ये वैल्यू है 3 डायमेंशन. लेकिन हम लोग जो सरफेस की बात करते हैं, जब हम लोग कर्वेचर की बात करते हैं, तो रेस्पॉन्स सरफेस आपको एक कर्वेचर के साथ देता है कि सपोज करिए यहाँ भी अगर आप लेजर पावर और स्कैन स्पीड की बात करें तो आप देखोगे दैट सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूं दैट सपोज ये 100 है, यहाँ पे आपका 300 है. ओके, और आपकी जो स्कैन स्पीड है सपोज यहाँ पे 1 मीटर है, 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपकी 3 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, तो आप देखोगे कि दैट यू आर हैविंग द लोएस्ट सरफेस, यू आर हैविंग द लोएस्ट सरफेस फिनिश एट 101. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन यू आर गेटिंग ओवर हियर. आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल गया है. और आप ये एक चीज और नोट करोगे यहाँ पे दैट आपको 100 और 3 पे भी लोएस्ट सरफेस फिनिश यहाँ पे मिल रही है. ठीक है, और आपको इस पोर्शन पे, और जो पोर्शन आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अगर आप इसे घुमाओगे तो यू विल जस्ट गेट कि आपको ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा, सबसे कम बेसिकली आपको यहाँ पे सरफेस फिनिश मिल रही है. जब अगर अच्छी सरफेस फिनिश की बात करोगे तो यू आर गेटिंग द गुड सरफेस फिनिश ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट. ओके, मतलब यहाँ पे आपकी, जहाँ पे आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है और 200 वॉट की आपकी लेजर है, तो यू आर गेटिंग द गुड सरफेस फिनिश, और यहाँ पे आपको बैड सरफेस फिनिश मिल रही है. तो यू जस्ट हैव आइडिया कि अगर हम लोग बढ़ा भी दे रहे हैं उस चीज को, है ना, एक ही पावर पे अगर उसको बढ़ा रहे हो तो किस लेवल तक आपको बढ़ाना है, क्योंकि आप ऐसे अगर आप यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड से अगर बढ़ा रहे हो 2 मीटर पे तो बहुत अच्छा आ रहा है. लेकिन जैसे आपने 2 मीटर से बढ़ाया तो 3 मीटर पे आप देखोगे
कि वो बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, आपका जो कर्वेचर है वो डिक्रीजिंग नेचर का कर्वेचर हो रहा है। ओके, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे आइडिया मिल जाता है इस कर्वेचर के थ्रू कि आपका बेसिकली कि क्या बेसिकली आपका सरफेस बनता है, आपको 3 डायमेंशन में आपको एक पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। ओके, सो RSM की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज अ पावरफुल टूल टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस पैरामीटर्स एंड द रेस्पॉन्स। ओके, तो ये बेसिकली एक पावरफुल टूल है टू एनालाइज द रिलेशनशिप, उनके बीच का क्या बेसिकली रिलेशनशिप होगी। ओके, किसमें? प्रोसेस पैरामीटर में और आपके जो रेस्पॉन्सेज हैं उनमें। ओके, सो मल्टीपल रिग्रेशन एज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक इज अ कॉमन वे टू बिल्ड द एम्पेरिकल मॉडल। यहाँ पे आप बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन आप बेसिकली यहाँ पे यूज कर रहे हो। ओके, फॉर किस चीज के लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक। ओके, तो दिस इज बेसिकली द स्टैटिकल टेक्निक बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स यूज करते हैं। ओके, देन सेकंड ऑर्डर रिग्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैज बीन यूज्ड टू फिट द मॉडल। यहाँ पे आप जो यूज करते हो वो क्या यूज करते हो? सेकंड ऑर्डर की रिग्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हो। एज यू कैन सी that y is equals to beta naught plus b1 xi plus b2 xi square, this b12 xi xj plus epsilon. So what this whole, ये जो बेसिकली आपको जो पूरी इक्वेशन जो दिख रही है इसका मतलब बेसिकली क्या है? सो नथिंग, ये जो आपका y है इट इज योर प्रिडिक्टेड रेस्पॉन्स जिसपे कि हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, एंड दिस बीटा नॉट इज नथिंग, इट इज बेसिकली द कांस्टेंट। ये बीटा नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। And this beta 1 is also one constant, but it is only for a single factor. ये x is showing you the a factor. ये एक फैक्टर के बारे में बात हो रही है। अगर हम लोग मतलब एक पैरामीटर के बेसिकली बारे में बात हो रही है, अगर हम लोग उसके पैरामीटर का पैरामीटर के साथ इंटरेक्शन देख रहे हैं तो यू विल सी कि यहाँ पे हमारे पास xi स्क्वायर है। ओके, सो बीटा 2 इज द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। ये बेसिकली आपका क्या है? क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है। ओके, अगर हम लोग B12 की बात कर रहे हैं तो B12 इज द इंटरेक्शन कोफिशिएंट। B12 क्या है? एक इंटरेक्शन कोफिशिएंट है। और ये क्या है? xi xj। xi इज बेसिकली द वन पैरामीटर एंड xi xj इज बेसिकली द सेकंड पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर ये हो सकता है, मतलब लेजर पावर का स्कैन स्पीड के साथ क्या इंटरेक्शन है। ओके, एंड दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट द एसोसिएटेड एरर, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ एरर तो होगी। ओके, सो दिस इज द एसोसिएटेड एरर विद दिस। तो जब भी हम लोग कोई भी टूल यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग मिनी टैब यूज करने लगे तो या फिर हम लोग DOE का कोई भी और भी जितने भी हमारे पास टूल हैं DOE को लगाने के लिए, तो यू विल जस्ट सी के आपकी बेसिकली इसी टाइप की इक्वेशन आपकी आती है। आई विल जस्ट शो यू दिस इक्वेशन बाय यूजिंग, जो मैंने बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। मैं आपको उससे भी आपको बेसिकली यहाँ पे शो करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट शो यू दैट हाउ बेसिकली इट वर्क्स, आपकी जो बेसिकली रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी कैसे वर्क करती है। सो जब हम लोग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ थिंग इज बेसिकली डिफाइन, सेकंड इज डिजाइन, थर्ड इज रन द एक्सपेरिमेंट, देन फिट एंड डायग्नोस और कंफर्म द मॉडल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आपने पहले तो डिफाइन किया किस चीज को? अपने रेस्पॉन्स को और इनपुट फैक्टर्स को आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड, आपने डिजाइन किया, क्या आप यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं कि आप किस बेसिकली आप किस प्रोसेस को यहाँ पे लगाना चाहते हो। आप यहाँ पे CCD सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन लगाना चाह रहे हो, बॉक्स बैकएंड डिजाइन लगाना चाह रहे हो, फुल फैक्टोरियल लगाना चाह रहे हो, पार्शियल फैक्टोरियल, वन फैक्टर एट अ टाइम लगाना चाह रहे हो, हिट एंड ट्रायल लगाना चाह रहे हो, क्या लगाना चाह रहे हो? तो ये डिजाइन आपको पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। देन रन द एक्सपेरिमेंट, दिस इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट, कि आपको पूरा अपना एक्सपेरिमेंट, आपने जो जो इनपुट लिए हैं उनके हिसाब से क्या क्या आपके आउटपुट आए हैं वो आपको यहाँ पे रन कराने पड़ेंगे। देन दिस फिट एंड डायग्नोस, ठीक है। तो आपने जो फिट किया है, फिट एंड डायग्नोस का मतलब यह है कि आपने कंटूर प्लॉट और सरफेस प्लॉट बना के देख लिए हैं कि आपके जो भी रेस्पॉन्स है वो आपके इनपुट पैरामीटर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। देन कंफर्म द मॉडल, मतलब आप अपने मॉडल को कंफर्म कर रहे हो कि आपका जो मॉडल है वो ठीक है नहीं। ओके, तो ये जो बेसिकली हम लोग अनोवा यहाँ पे बनाते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें हम लोग F वैल्यू और P वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं, फिशर्स वैल्यू, ठीक है, और P वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि आपकी जो P वैल्यू और F वैल्यू है वो क्या है। उसके हिसाब से हम लोग मानते हैं कि दैट दिस मॉडल इज बीइंग कंफर्म्ड, और अब ये जो मॉडल आपने लगाया है दैट इज द ऑप्टिमल वन। ओके, और उसी से हम लोग अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माय रिसर्च। आई हैव जस्ट manufactured this TI15MO alloy for the orthopedic implants. Okay, so the aim is to optimize or means to minimize the dilution of minimum track deposition, ताकि मैंने बहुत सारे ट्रैक्स डाले थे, सिंगल ट्रैक्स, और मैं चाहता था कि इसमें बेसिकली जो डाइल्यूशन जो बेसिकली है वो कम से कम हो। ओके,
ये जो आपका बेसिकली डाइल्यूशन जो होता है दैट इज द AP अपॉन AP प्लस AB, मीन्स एरिया ऑफ पेनिट्रेशन अपॉन एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ बल्ज। ओके, मीन्स आपको डाइल्यूशन की अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो दैट इज डायरेक्टली लिंकिंग टू दिस डेप्थ। ओके, तो आपकी जो डेप्थ है ये कम होनी चाहिए इन रेस्पेक्ट टू दिस हाइट। ओके, तो इसके प्रोसेस लेजर पावर लिया, स्कैन स्पीड, पाउडर फीड रेट, ये सब मैंने लिया यहाँ पे। एज यू कैन सी दीज आर 3 लेवल्स ओवर हेयर। तो इन लेवल्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं -1 0 1। ओके, अगर हम लोग को लेवल बढ़ाने हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 और -2 करके भी लिख सकते हैं। देखिए, तो मैंने केवल 3 लेवल और 3 ही फैक्टर यहाँ पे कंसिडर किए हैं बिकॉज दीज फैक्टर्स आर बीइंग, यू कैन से दी, you can say कि इनका they are having the more effect on the dilution, these laser power, scan speed and powder feed rate that I just you can say कि studied from the literature, okay, or that I've just got from the some trials over there। कुछ ट्रायल्स भी मैंने इसके ऊपर किए थे, कुछ लिटरेचर भी मैंने पढ़ा था। तो आई विल जस्ट गॉट कि जो डाइल्यूशन का जो मेन प्रोसेस पैरामीटर जो इफेक्ट करते हैं दैट इज द लेजर पावर, स्कैन स्पीड एंड पाउडर फीड रेट। तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट सेलेक्टेड दीज मेन पैरामीटर्स एंड जस्ट टेक दीज 3 लेवल्स ओवर देयर। ओके, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट गो फॉर द एक्सपेरिमेंट कि मैंने पूरा यहाँ पे पूरी इसकी एक सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन की पूरी एक यू कैन से कि रेस्पॉन्सिबल मेथोडोलॉजी से इसका पूरा डिजाइन किया टेबल को। ओके, एज यू कैन सी द रन ऑर्डर इज अप टू दी 20। मैंने आपको बताया था कि 27 एक्सपेरिमेंट अगर आपके बनेंगे 3 टू दी पावर 3 में, तो यहाँ पे 20 एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। एंड स्टैंडर्ड ऑर्डर जैसे मैं आपको बताया, रैंडमाइजेशन यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने किया, और ये लेजर पावर, स्कैन स्पीड और पाउडर फीड के हिसाब से हमारी क्या विड्थ आई, क्या हाइट आई, क्या डेप्थ आई और क्या उसका डाइल्यूशन आया। तो ये पूरा यहाँ पे इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं। तो दिस इज द रेस्पॉन्स एंड दीज ऑल आर दी इनपुट्स ओवर हियर। ओके, तो उनके हिसाब से एज मैंने आपको जो पहले इक्वेशन जो शो करी थी, this is the beta 1, this is sorry beta naught, this is the beta 1, this is the beta 2, this is the beta 3, and this is the beta 1 square, means when there is a interaction between the same process parameter, and this is basically showing you the constant when you are interacting the 2 process parameters with each other. This is for the width, height, depth and dilution, and after that you will just see the ANOVA for the fit and the diagnosis ऑफ योर, यू कैन से हाउ, कैसे आप उसको बेसिकली कंफर्म कर रहे हो कि आपने जो भी बनाया वो ठीक बनाया कि नहीं बनाया। ओके, सो मैंने इसमें लेके चला था कि दैट आई हैव टू गो फॉर दी 99% कि मेरे को यहाँ पे जो इसकी बेसिकली जो 99% मेरे को यहाँ पे कंफर्म करना है कि इसमें एरर जो है 99% से मतलब 99% से कम होनी चाहिए। ओके, मतलब आपका जो बेसिकली जो सॉल्यूशन जो आपका बनना है, ठीक है, जो भी आपकी एरर आ रही है वो 1% से कम होनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे पी वैल्यू में दैट दीज वैल्यूज आर द सिग्निफिकेंट वैल्यूज। ओके, ये आपकी जो वैल्यूज हैं वो सब की सब सिग्निफिकेंट है। ओके, और जो आपकी बेसिकली जो प्योर एरर है दैट इज 0.616, वो आपकी 0.01 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 0.616 है, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग कि आपको यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन, जो आप बेसिकली आपके जितना भी पूरा ये इक्वेशन बनी है, अगर आप इसमें अपनी कुछ और नई वैल्यू अगर डालना चाहते हो, क्योंकि यार हैविंग, अब आपके पास एक इक्वेशन है विड्थ के लिए, हाइट के लिए, डेप्थ के लिए, डाइल्यूशन के लिए, तो अगर आप इसमें नई लेजर पावर और स्कैन स्पीड डालोगे तो आपको एक नई विड्थ मिलेगी वहां पे। ओके, बिकॉज यू आर हैविंग द इक्वेशन, वो किसी एक प्रोसेस पैरामीटर सेटिंग के लिए आपने इक्वेशन बना दी है, लेकिन अगर उसके बाहर अगर जाना चाहते हो, अगर आप 700, 1700, 1800, 1900 से बाहर जाना चाहते हो, ओके, अगर आप 2000 लेजर पावर के लिए वर्क करना चाहते हो या फिर 1500 वॉट के लेजर के लिए वर्क करना चाहते हो, तो आप उस इक्वेशन में अगर आप रखते हो तो आपकी जो वैल्यू जो प्रिडिक्ट करेगा विड्थ की, दैट इज 86.41% करेक्ट। ओके, तो ये इतना आपका मतलब एक्यूरेसी बेसिकली आपको यहाँ पे शो कर रही है। Then Fisher said that F static is used to make the decision in support or against the null hypothesis, and this rule is that if calculated F value is greater than the F static or the F critical value, the null hypothesis is rejected, otherwise the null hypothesis is not rejected. Okay, and we can also check this percentage contribution over there, the sum of square of a factor upon the total sum of the squares. और ये पूरा यहाँ पे आपका बेसिकली फिट और डायग्नोस है कि कैसे आप चेक करोगे अपने यू कैन से कि रेस्पॉन्स को, वो कैसे वेरी कर रहा है आपके इनपुट प्रोसेस पैरामीटर के हिसाब से। तो यू कैन जस्ट सी कि डाइल्यूशन जो है उसमें आपने होल्ड किया है F4 को, मतलब फीड रेट को होल्ड किया है, आप लेजर पावर और स्कैन स्पीड के बीच में अपना कंटूर प्लॉट देख रहे हो, एंड दिस इज योर सरफेस प्लॉट ओवर हियर। ओके, एंड दीज आर बेसिकली द फिट्स, एज यू नो कि ये बेसिकली आपको फिट्स दिखा रहा है कि आपने जो 20 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे हैं
तो उनकी एक फिट लाइन जो है वो ये फिटेड लाइन जो ये है और उसके आसपास कितना है, कितना एरर बेसिकली है। तो अगर ये आसपास है तो दैट इज शोइंग कि आपका जो आपने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें कम एरर है। ओके, अगर ये यही पॉइंट्स अगर आपके यहाँ पे होते तो दैट शोइंग यू कि दीज आर हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एरर, तो आपको दोबारा भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। ओके, देन दी ऑप्टिमाइजेशन, आपके उसी मिनी टैब में ही यू जस्ट गो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि आपका जो आपने बेसिकली जो प्रोसेस पैरामीटर लिए हैं उसमें क्या बेसिकली ऑप्टिमाइज वैल्यू है, तो आप यहाँ पे बेसिकली उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी ले सकते हो। ओके, और वो कितना करेक्ट है, ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी अबाउट दिस फ्रॉम दिस डी वैल्यू दैट इज 96.6% करेक्ट। ओके, so this is about the design of experiment, and you can just refer this book, design and analysis of experiment, that is written by the Douglas C. Montgomery. Okay, Montgomery. This is the Springer book. Okay, so thank you so much for this complex topic.